Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to online classes in Division Public School and College Sahiwal. Today is Maths lecture number 10, class 7, presented by Ms. Rakshi Ramzan, SS Mathematics in Division Public School and College Sahiwal. Students, by the end of this lesson, you will be able to solve the sums related to multiplication of monomial with binomials and trinomial. Students, in your previous lecture, you already know about what is meant by monomial. Students, what is meant by monomial? A polynomial having one term is called a monomial. For example, 5, 3x and 2ab, these are all monomial. बच्चों, मोनोमियल के बारे में आप जानते हैं कि ऐसी पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है उसे हम मोनोमियल कहते हैं. जैसे 5, 3x and 2ab हमारे पास मोनोमियल है. Similarly, we can see binomial. A polynomial having two terms is called a binomial. For example, 3x plus y and 3b minus a. These are all binomial. Similarly, trinomials. A polynomial having three terms is called a trinomial. For example, a plus b minus c and 3x plus y plus z. These are trinomial because it contains three terms just like that, a, b and minus c. And in 3x plus y plus z, there are three terms, 3x, y and z. Student, we know about polynomial and there are three types of polynomial. Number 1, monomial. Number 2, binomial. And number 3 is trinomial. Students, what is meant by monomial? And the monomial is a polynomial which contains only one term. For example, 2x. Students, monomial contain only one term just like 2x. Similarly, we can see binomial. And binomial contain two terms just like you can see 3a plus b. 3a plus b is a binomial. 3a and b are two terms which are connected by operation sign addition. So we can say that this polynomial contains two terms, so it is a binomial. Now we will come on trinomial. Trinomial contain three terms and just like that x plus y plus z. X plus y plus z contain three terms, x, y and z, and such type of polynomial which contain three terms is called trinomial. And such type of polynomial which contain one term is called monomial. And such type of polynomial which contains two terms is called binomial. And the such type of polynomial which contains three terms is called trinomial. Students, what is mean by product law? While multiplying two rational numbers with same base, we add their exponents, but the base remains unchanged. For example, for any number a with exponents m and n, this law is written as a raised power m multiply a raised power n is equal to a raised power m plus n. Students, ये प्रोडक्ट लॉ का मतलब क्या है? प्रोडक्ट लॉ का मतलब ये है कि जब आपके पास दो रैशनल नंबर्स दिए जाएं और उनकी बेसिस हमारे पास सेम हो और उनके एक्सपोनेंट्स मुराद है, जैसे हमारे पास यहाँ पर a रेज पावर m में m इज एक्सपोनेंट, a इज अ बेस, और a रेज पावर n में हमारे पास a इज अ बेस, n इज अ एक्सपोनेंट्स. तो आप देख सकते हो कि इनकी बेसिस सेम है, तो हमें इनके एक्सपोनेंट्स m and n को हमने ऐड कर दिया है. और इसका मतलब ये हुआ कि जब बेसिस और सेम होती हैं, हमने एक्सपोनेंट्स को क्या करना है? ऐड कर देना है. Students, in unit number 8, algebraic expression, in exercise number 8.3, question number 1, we will discuss part 4 to 6. In exercise number 8.3, today we will solve question number 1, multiply.
In multiply we have part 4. Students, in part 4 we have minus 4ab and minus 2bc. We have to multiply minus 4ab to minus 2bc. बच्चों आपने minus 4ab को minus 2bc से मल्टीप्लाई करना है. जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम इन्हें ब्रैकेट्स में लिखकर माइनस 4ab एक मोनोमियल है, इसे हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे. मल्टीप्लाई माइनस 2bc एक दूसरी मोनोमियल है, हम इन्हें भी ब्रैकेट में लिखेंगे और फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने बच्चों कोफिशिएंट्स को सेपरेट लिखना है ब्रैकेट के अंदर. जैसे कि हमारे पास है -4. -4 इज अ कोफिशिएंट ऑफ ab, तो हम सबसे पहले -4 लिखेंगे. फिर मल्टीप्लाई bc का कोफिशिएंट क्या है? -2. हमने फिर -2 लिखना है. -2 को हमने -4 को हमने -2 से मल्टीप्लाई करना है. अब फिर आपने क्या करना है? लाइक टर्म्स को सेपरेट करना है. आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर है हमारे पास एक वेरिएबल दिया गया है a. हमारे पास a जो है उसे हम अलग से लिख लेंगे और हमारे पास b. बच्चों ये b और हमारे पास ये b -2bc में जो b आ रहा है, आपने उन्हें एक अलग ब्रैकेट में लिखना है. यानी आपने लाइक टर्म्स को अलग कर लेना है और अनलाइक टर्म्स को अलग कर लेना है. अब आप देख सकते हो कि c के साथ हमारे पास -4ab में लाइक टर्म नहीं है, तो आपने उसे सेपरेट करके लिख लेना है. अब आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आपने -4 को -2 से मल्टीप्लाई करना है और उसके लिए हम माइनस को पहले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? प्लस. और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 8. फिर हम a को वैसे लिखेंगे और यहाँ पर जब हम बेसिस हमारे पास सेम है और एक्सपोनेंट है हमारे पास 1 और 1 है, तो हम कौन सा लॉ यूज करेंगे? प्रोडक्ट लॉ. प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास a रेज पर m मल्टीप्लाई a रेज पर n इज इक्वल टू a रेज पर m प्लस n, जिसमें बेसिस हमारी सेम है और एक्सपोनेंट्स को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? a रेज पर m प्लस n. अब हम यूज करेंगे प्रोडक्ट लॉ. बच्चों जब हमारे पास बेसिस सेम होंगी, आप b रेज पर 1 में हमारे पास मल्टीप्लाई b रेज पर 1 में हमारे पास बेसिस जो है वो सेम है और हम एक्सपोनेंट्स को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे. तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जब हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा. a हमारे पास वैसे ही लिखा जाएगा. मल्टीप्लाई b रेज पर 1 में हम एक बेस बनाकर और हम उनके एक्सपोनेंट्स को ऐड करके लिख देंगे जैसे कि 1 प्लस 1, तो हमारे पास और c हमारे पास साथ में वैसे लिखा जाएगा. अब आप इन्हें जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 8a b रेज पर 2. b रेज पर 2 कैसे आता है? जब हम 1 को 1 में प्लस करते हैं तो हमारे पास b का एक्सपोनेंट 2 हो जाता है और इस तरह हमारे पास आंसर क्या आ जाता है? 8a b रेज पर 2 इंटू c हमारे पास इसका आंसर आ जाता है. चलिए बच्चों अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, -6x स्क्वायर y एंड 3xy z स्क्वायर. -6x स्क्वायर y हमारे पास एक मोनोमियल है और 3xy z स्क्वायर भी एक मोनोमियल है. हमने मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम इसे ब्रैकेट में लिखकर मल्टीप्लाई के साथ लिखेंगे. -6x स्क्वायर y ब्रैकेट मल्टीप्लाई 3xy z स्क्वायर. अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है? इनके कोफिशिएंट्स को सेपरेट कर लेना है. जैसे कि हमारे पास x स्क्वायर y में हमारे पास कोफिशिएंट क्या आ जाता है? -6. सिमिलरली हमारे पास एक्स वाई जी स्क्वायर में कोफिशिएंट क्या आ जाता है? 3. तो बच्चों आपने कोफिशिएंट्स को कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है. जैसे -6 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है. सिमिलरली आप एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ बिकॉज दीज आर लाइक टर्म. एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स, इट इज अ लाइक टर्म. अब आप इसी तरह y को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ बिकॉज इट इज अ लाइक टर्म. आपने y को मल्टीप्लाई y के साथ करना है. आप यहाँ देख सकते हो कि हमारे पास कोई भी -6x स्क्वायर y में z मौजूद नहीं है और यहाँ पर हमारे पास 3xy z स्क्वायर है. इट्स मीन इट इज अनलाइक टर्म, तो हम इसे सेपरेट लिख देंगे साथ ही z स्क्वायर को. अब हमने अगले स्टेप में क्या करना है बच्चों? सबसे पहले हमने -6 को +3, यहाँ जहाँ कोई सिंबल नहीं होता वहां हम क्या यूज करते हैं? प्लस. तो -6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हमने यहाँ पर प्लस का सिंबल यूज करके हमने यहाँ -6 को किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों? +3 के साथ. जब हम
6 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -18। और यहाँ पर जब हम x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हम क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट लॉ। तो आपने यहाँ पर क्या यूज करना है, प्रोडक्ट लॉ। और प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग आपकी जब बेसिस जो है यानी बेसिस x और यहाँ पर भी हमारी बेसिस x है, हमारे पास इसका एक्सपोनेंट जो है वो क्या आ जाएगा 1। अब हमारे पास इसका एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा 1। तो हम एक्सपोनेंट 1 को इस्तेमाल करेंगे और हम इन्हें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों अब आपने क्या करना है, प्रोडक्ट लॉ को इस्तेमाल करते हुए आपने x स्क्वायर मल्टीप्लाई x को में बेसिस सेम है तो आपने एक्सपोनेंट्स को ऐड करना है। जैसे हमारे पास x का एक्सपोनेंट है 2 और इधर x का एक्सपोनेंट कुछ भी नहीं है तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे 1। सिमिलरली आप देखें y को हम जब y से मल्टीप्लाई करेंगे, सिमिलरली जब आपने y को y से मल्टीप्लाई करना है तो आपने बेसिस सेम है, हमारे पास यहाँ एक्सपोनेंट मेंशन नहीं किए तो आपने यहाँ पर एक्सपोनेंट को 1 एज अ 1 कंसीडर करना है और यहाँ पर भी एज अ 1 कंसीडर करना है। और जब हम प्रोडक्ट लॉ इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, -6 मल्टीप्लाई +3 इज इक्वल टू -18 बिकॉज माइनस प्लस माइनस होते हैं और 6 3 18। और यहाँ पर हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के मुताबिक हमारे पास प्रोडक्ट लॉ को यूज करते हुए आपने बेसिस जो है वो x हो जाएगी और एक्सपोनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पर हमारे पास एक्सपोनेंट नहीं है तो यहाँ हम क्या कंसीडर करेंगे, तो यहाँ हम एक्सपोनेंट जो है वो 1 कंसीडर करेंगे और 2 को 1 में प्लस कर देंगे। सिमिलरली बच्चों आपने यहाँ पर एक्सपोनेंट आपके पास नहीं दिया गया तो आपने यहाँ पर भी 1 कंसीडर करना है और यहाँ पर भी 1 कंसीडर करना है। जैसे कि आप यहाँ पर एक्सपोनेंट्स जो है वो 1 कंसीडर करेंगे और यहाँ पर भी एक्सपोनेंट्स को 1 कंसीडर करेंगे और जब आप इनके एक्सपोनेंट्स को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1 + 1 और आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा -18। 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 और 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 और हमारे पास z स्क्वायर और इसका हमारे पास x रेज पर क्या आ जाएगा 2 + 1 और वो आ जाएगा 3 और y रेज पर क्या आ जाएगा 1 + 1 2 और हमारे पास z रेज पर 2 इसका वैसे ही आ जाएगा और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, एक और हमारे पास कंटेंट है जिसमें हमने डिस्कस करना है इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल विद बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल विद एग्जांपल्स। अब हम एग्जांपल्स के जरिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल की विद बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल के साथ डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 जिसमें सिंप्लीफाई करना है आपने। तो बच्चों आपको यहाँ पर दिया गया है 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। आपने इसे मल्टीप्लाई करना है। 3x स्क्वायर आपके पास क्या है, एक मोनोमियल है और x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर क्या है, ये आपके पास एक बाइनोमियल है। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आपने 3x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना है, आपने 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। फिर आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 3x स्क्वायर को आपने y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 3x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर एंड माइनस एंड देन हम मल्टीप्लाई, हमने क्या करना है 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है अपने y स्क्वायर के साथ। ठीक है, अब इनमें देखें आपके पास x स्क्वायर मल्टीप्लाई x के ये है लाइक टर्म्स और x स्क्वायर मल्टीप्लाई y स्क्वायर हमारे पास क्या है, अनलाइक टर्म्स। तो हम लाइक टर्म्स के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोडक्ट लॉ, जिसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना होता है, a रेज पर m मल्टीप्लाई a रेज पर n इज इक्वल टू a रेज पर m प्लस n, यानी बेसिस आर सेम, एक्सपोनेंट शुड बी एडिड। तो आपने क्या करना है, इनके बेसिस सेम है तो आपने एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देना है। जैसे देखें आपने ये x रेज पर 2 + 2 -3, आपने इसमें क्या करना है, x स्क्वायर मल्टीप्लाई y स्क्वायर, इसे सेपरेट रखना है क्योंकि ये हमारे पास क्या है, अनलाइक टर्म है, मतलब इनकी बेसिस सेम नहीं है इसलिए हम इन्हें ऐसे ही रहने देंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, x3x रेज पर 2 + 2, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बन जाएगा -3 और ये साथ में x स्क्वायर मल्टीप्लाई y स्क्वायर, तो ये इसका क्या आ जाएगा हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब आपने क्या किया, सबसे पहले आपने 3x स्क्वायर को, जब हमारे पास ये एक मोनोमियल दी गई थी, आपने बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 3x स्क्वायर को आपने फर्स्ट टर्म यानी x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने 3x स्क्वायर को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है और जो आपका साइन होगा वो आप वैसे ही लिखेंगे, जैसे माइनस है तो माइनस ही लिखेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोफिशिएंट जो है वो प्लस का है, एडिशन का है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने कौन सा लॉ यूज करना है, प्रोडक्ट लॉ, जिसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट्स को हमने ऐड कर देना है और -3x स्क्वायर मल्टीप्लाई y स्क्वायर, इनकी बेसिस सेम नहीं थी इसलिए हम वैसे ही रखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर एक्सपोनेंट ऐड करने से क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 और -3x स्क्वायर y स्क्वायर विच इज ओवर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए अब आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हमारे पास क्या दिया गया है, -6a स्क्वायर मल्टीप्लाई 2a
प्लस 3b। बच्चों -6a क्या है, हमारे पास एक मोनोमियल है, और 2a प्लस 3b क्या है, हमारे पास एक बायनोमियल है। बच्चों -6a स्क्वायर क्या है, हमारे पास एक मोनोमियल है, और 2a प्लस 3b क्या है, बायनोमियल है। तो आपने जब मोनोमियल को बायनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने आपको अभी बताया है, सबसे पहले आपने क्या करना है, 6a को किससे मल्टीप्लाई करना है, आपने 2a से। आपने सबसे पहले क्या करना है, 6a को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2a से, एंड 6a स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना है, आपने 6a को मल्टीप्लाई करना है 3b से। तो हमारे पास ये क्या टर्म आ जाएंगी, -6a स्क्वायर मल्टीप्लाई 2a। सबसे पहले -6a को हमने कौन सी टर्म से, 2a से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस -6a स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3b से। तो बच्चों आपके पास -6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट्स को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम -6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारे पास यहाँ पर जो है a स्क्वायर और a हमारे पास क्या है, ये लाइक टर्म्स हैं, इसलिए हम a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे a से। और इसी तरह प्लस हमारे पास -6a को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम यहाँ पर -6a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। ठीक है, तो -6 हमारे पास कोफिशिएंट है a स्क्वायर का, और जो 3 है वो कोफिशिएंट है b का। तो हम -6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और हमारे पास इधर a स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b से। तो जो हमारे पास, क्योंकि a स्क्वायर मल्टीप्लाई a हमारे पास एक लाइक टर्म्स है, तो हम इसके लिए कौन सा लॉ यूज करेंगे, प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, a रेज पर m मल्टीप्लाई a रेज पर n इज इक्वल टू a रेज पर m प्लस n, यानी बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट को हम ऐड कर देते हैं। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास आपको कोई कोफिशिएंट में नजर नहीं आ रहा, तो हम इसकी जगह क्या यूज करेंगे, 1। ठीक है, तो जब हम आगे इसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर बन जाएगा, -6 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू -12। -6 मल्टीप्लाई 2 क्या होते हैं, -12। बच्चों यहाँ पर हमारे पास कोई सिंबल नहीं है, तो हम यहाँ कौन सा सिंबल यूज करते हैं, एडिशन का। तो प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस। तो इधर से यहाँ पर हमारे पास क्या करना है, हमने इनके एक्सपोनेंट्स को प्लस कर देना है, जैसे 2 + 1, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 + 1, और इधर से हमारे पास -6 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएंगे, 18। 6, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, -18 जी। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास कोई सिंबल नहीं है, तो हम यहाँ पर कौन सा सिंबल यूज करेंगे, एडिशन का। तो हमारे पास प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस। तो 6 3 क्या आ जाएगा, 18। यहाँ पर हमारे पास a स्क्वायर मल्टीप्लाई b, क्योंकि अनलाइक टर्म्स है इसलिए हम इसे लिख लेंगे a स्क्वायर b। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा, जब हम इधर एक्सपोनेंट्स को ऐड करेंगे 2 + 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 a रेज पर 3 -18 a स्क्वायर b। That is our required answer. Today we have discussed about multiplication of monomial with monomial, binomial and trinomials and related sum of exercise number 8.3. And today's home assignment is you have to solve exercise number 8.3, question number 6. बच्चों आपने एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 को ट्राई करना है, एंड एग्जाम्पल नंबर 2 के थर्ड पार्ट को आपने सॉल्व करना है। थैंक यू एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज।